Energy, and I will take in your science subject for class 4. As you all know that your exams is over and you all people are promoted to class 4. Before that, you people are understanding what is the EVS and little bit understand about the subject and rest. But now you people, when you moving to the next class, your science is a separate subject. So before we start the lesson, I want all of you open your book and turn the page number 5. That is the chapter 1, food and digestion. So our first chapter is chapter 1, food and digestion. I hope all of you open your book and underline the chapter name, food and digestion. I hope all you done this. So just before going to start the lesson, you all just take a look into your book, that is the page number 5, food and digestion. There is a 4 pictures, the mandatory 4 pictures are there. One is a boy is playing with the football, another is some girl is reading something or writing something. One farmer is there who plucked the field, and the 4th one is a 2 persons relationship, or father or children relationship. These 4 pictures are there. The 4 pictures showing the different things. Different things means अलग-अलग तरीके से उनका काम करने का तरीका बताया गया। एक बच्चा जो है खेल रहा है, एक बच्चा जो है पढ़ रहा है, एक जो आदमी है वो फील्ड पे काम कर रहा है, और एक जो है ऐसे खड़े, दैट इज देयर हैव सम कम्युनिकेशंस और दे आर स्टैंडिंग। इन चारों पिक्चर्स का आपस में रिलेशन क्या है, क्या चीज़ है? देखिए, अगर हम सबसे पहले ये चीज़ स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द फूड, व्हाट इज द फूड? फूड इज द सब्सटेंस व्हिच वी टेक, जो हम खाना खाते हैं वही हमारा फूड है। नाउ व्हाट अबाउट द डाइजेशन? खाना खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करना या पचाना क्या कहलाता है? डाइजेशन। तो दिस इज द टू टर्मिनोलॉजी, फूड एंड डाइजेशन। नाउ I hope all of you open the book. So before going to the next page, we just going line by line. So all of you read it with me. Have you ever thought why do you feel hungry? The first question थी, क्या आपने कभी सोचा है कि हमको भूख क्यों लगती है? Why do we feel hungry? Our body make us feel hungry because it need food. When we feel hungry, that means हमारी बॉडी को क्या जरूरत है? खाना खाने की जरूरत है। दिस इज द मेन थिंग्स। हमको खाना तब खाना चाहिए जब हमको भूख लगती है। आवर बॉडी वर्क्स ऑल द टाइम, हमारा बॉडी ऑल द टाइम वर्क करता है, सारा दिन। देन इट वर्क्स व्हेन वी प्ले, स्टडी, ईट, वॉक, ब्रीथ और रन। सारे कामों के लिए हमारा बॉडी जो साइमल्टेनियसली वर्क करता है। यू कैन फील दिस कि चाहे हम कुछ भी काम करें, हमारा बॉडी जो है साइमल्टेनियसली इट्स गोइंग टू वर्क। सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाइक हार्ट कीप वर्किंग इवन व्हेन वी आर स्लीप। जब हम सोते हैं तभी हमारा जो हार्ट है वो पंप करता है, धड़कन होता है। यू कैन फील द सेम थिंग्स, राइट? For doing all the work, our body needs a lot of energy. चाहे हम कोई भी काम करें, चाहे हम स्टडी करें, चाहे जॉबिंग करें, चाहे खेलें, whatever we done or what we like to do, all the things we need energy. Energy that is come from the food. We get this energy from a food we eat. हमको ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमको ये एनर्जी वहाँ से मिलती है जहाँ से हम फूड खाना शुरू करते हैं। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ लाइफ। मीन्स अगर हम खाना खाते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है, देन वी आर सपोज टू डूइंग सम ग्रेट वर्क टुगेदर। सो द मोरल ऑफ द थिंग इज वी ईट फूड टू गेट एनर्जी टू स्टडी, play and work, grow and keep ourselves fit and healthy.
same thing in your body, right? So we eat food. That's all. We eat food to get energy to study, play and work, grow and keep ourselves fit and fine. तो हमको खाना क्यों ज़रूरी है? फूड हमको इसलिए ज़रूरी है जिससे हम प्रॉपरली ग्रो कर सकें, keep ourselves fit and fine and work very smoothly. This is the main things of our thing. Next we come to the next part, that is the nutrition. The substance that are needed by our body for good health and growth are called nutrition. तो substance क्या होगा? That needed for by our body for the good health and growth. It's called the nutrition. Nutrition present in our food by the carbohydrate. कौन कौन से सब्सटेंसेस तो हो गए, तो वो सब्सटेंसेस हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? वो सब्सटेंसेस हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, देन आफ्टर प्रोटीन, देन आफ्टर फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो ये सारी की जो कॉम्बिनेशन है इट इज़ कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स. तो सबसे पहले हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट पे. तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? वी गेट एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट. करेक्ट, वी गेट एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट. क्या क्या ऑप्शन है इसमें? शुगर है, स्टार्च है. दिस आर द टू मेन टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. तो अगर कोई भी पूछे तो क्या है दो मेन कार्बोहाइड्रेट? शुगर एंड स्टार्च. देन फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट इट्स कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. तो कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है. और ये किन किन को ज़रूरत पड़ती है? लेबर्स को, फार्मर को, रिक्शा पुलर्स एंड द स्पोर्ट्समैन, इन सबको कार्ब ज़रूरत जो है सबसे ज़्यादा होता है. बिकॉज इन कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू ये बहुत ईजी हो जाता है उनका काम करना. फूड्स रिच आर कार्बोहाइड्रेट कॉल द एनर्जी गिविंग फूड्स. मैंने पहले कहा था कि फूड में जो एनर्जी मिलती है इसीलिए इसको एनर्जी गिविंग फूड जो है कहा जाता है. जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, पोटैटोज हो गया, मेज़ है, बनाना है, हनी है, आर रिच इन द कार्बोहाइड्रेट्स. ऑल आर एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. तो ये सारे जो हैं वो किसके एग्जाम्पल्स हैं? वो एग्जाम्पल्स कार्बोहाइड्रेट्स आर द वेरी रिच इन द सोर्स. तो ये जो कुछ सैम्पल्स आपको दिख रहे हैं दिस इज़ द फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, तो अगर हम इस बेसिक फिनोमेना पे बात करें तो जिस जिस चीज़ों से एनर्जी मिले वो क्या होगा? सोर्स हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट पे. अब आते हैं प्रोटीन पे. प्रोटीन में क्या चीज़ें हैं? प्रोटीन्स हेल्प अस ग्रो. ठीक, then growing children need a lot, right? Then proteins also help to build muscles and repair the damaged tissue of the body. Clear? These are the main things of the protein. Proteins क्या हो गया? ये एक तो हेल्प करता है ग्रो में. दूसरा, जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनके लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, ज़रूरी है. यू can say that. And protein also help to build the muscles and repair the damaged part. Now protein rich in protein means the foods, so those who are rich in proteins are called the bodybuilding. तो bodybuilding foods में फिश हो गया, एग हो गया, मीट, पल्सेस जो हैं वो हो गए प्रोटीन के पार्ट. उनको ऑलरेडी दिख रहा है पिक्चर्स में क्या क्या है.
इसके बाद जो आता है वो आता है फैट, पर फैट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या आ जाएंगी, प्रोटीन्स की चीज़ें। प्रोटीन्स पढ़ते हुए बच्चों को डेफिनेटली इनटेक करना चाहिए, बिकॉज प्रोटीन्स जो है वो रिच इन फैट्स होगा। ना फैट्स पे आते हैं, तो फैट्स जो है दिस आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द एनर्जी इन आवर डाइट। तो अगर हमारे डाइट की बात करें तो हमको ये जो फैट्स हैं वो लेना है कम से कम। रिच इन फैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड। बटर, घी, कुकिंग ऑयल, ये सारे जो हैं दिस इज़ द फॉर्मेशंस ऑफ द फैट्स, ये कह सकते हो। तो फैट जो है इसकी चाहे हम थोड़ी सी लिटिल अमाउंट भी ले लें, ओके, इट इज़ इफ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फैट, तो ये ठीक है। बट इफ़ इट इज़ एक्सेस, बिकॉज कुकिंग ऑयल, नट्स, ये भी रिच इन फैट्स हैं, बट अगर हम इसको एक्सेस में ले जाएं तो सम इट इज़ हार्मफुल टू अस, बिकॉज इट मेक अस ओबेस एंड द एक्यूज मेनी डिजीजेस। तो चीज़ें बिल्कुल। नाउ विटामिन, विटामिन क्या, द फूड्स रिच इन विटामिन आर कॉल्ड द प्रोटेक्टिव फूड्स, बिकॉज ये की फर्स्ट डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव फूड। नाउ विटामिन के सोर्सेज क्या क्या हो जाएंगे, विटामिन के खूब सारे सोर्सेज हैं। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गया, मिल्क, फिश, मीट, एग, स्प्राउट, कम्स, ऑल आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन। तो समहाउ दिस आर ऑल्सो नीडेड फॉर आवर बॉडी। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत का है। अब अगर विटामिन के बाद, विटामिन का तो ये कुछ सिनेरियो है। अगर आते हैं नेक्स्ट आ जाता है मेन टॉपिक वो मिनरल का। फूड मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। तो प्रोटेक्टिव फूड्स किसको बोलेंगे, जो रिच इन मिनरल है। दे कीप अस हेल्दी एंड फिट, दे हेल्प आवर बॉडी फॉर्म बोन्स, टीथ एंड ब्लड। अंडरस्टूड, बोन, टीथ एंड ब्लड। क्यों, because it has a calcium, potassium, sodium, iron, iodine are the some of the important minerals. Vegetables is also, it is the main part of that. इन क्या क्या sodium, iodine ये हो गया, and vegetables भी है important part of that है, right? It is a thing. Now after completing the portion, हमने देख लिया कि क्या क्या पोर्शंस हैं, आयोडीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स की, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इन सब के पोर्शंस हमने देख लिया है। तो इसके बाद हम डायरेक्ट कहाँ पे जंप करेंगे, दिस इज़ द कैल्शियम मेक्स आवर टीथ एंड बोन स्ट्रॉन्ग। कौन सा पोर्शन है, कैल्शियम जो है इट इज़ मेक टीथ एंड आवर बोन्स फैट, बिकॉज मिल्क, कर्ड, पनीर, ये सब जो है इट इज़ रिच इन कैल्शियम। और ये कैल्शियम क्या है हमारी बॉडी के लिए भी ज़रूरत, बिकॉज इट इज़ हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड। एंड इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल, कैरेट एक्सेट्रा रिच इन आयरन। ओके, इन एडिशंस दिस इज़ द न्यूट्रिएंट आवर फूड मस्ट हैव द रफेज एंड वाटर। तो रफेज एंड वाटर का पोर्शन क्या है आपका, नेक्स्ट पोर्शन है, ठीक है। दिस इज़ द रफेज, जो एक्स्ट्रा थिंग्स जाती है जिससे फिल्टर होके जाता है। तो रफेज इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स। कहाँ से मिलता है, प्लांट्स से। ये रफेज हमको कहाँ से मिलेगा, ये बेसिकली एक फाइबर है। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड सीड्स कंटेन फाइबर्स, ठीक। तो बेसिक है, एंड वी कैन नॉट डाइजेस्ट विदाउट द हेल्प ऑफ द रफेज, वी कैन नॉट डाइजेस्ट। ये क्यों बोला गया है, बिकॉज ये रफेज जो है समहाउ बॉडी में जो डिटॉक्सिक थिंग्स हैं उसको निकालने के लिए हेल्प करता है। रफेज तो बेसिकली जैसे पहले मैंने क्लियर किया कि इट इज़ अ सिंपली अ फाइबर। फाइबर कहाँ पे, जिसके फूड आइटम्स में फाइबर्स हैं, जो रफेज चीज़ें होती हैं तो वो है। एंड समहाउ इट इज़ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी, जो पेट से निकलता है ना, इट इज़ अनडाइजेस्टेड। डाइजेस्ट होने के बाद तो इट इज़ गोइंग एनर्जी। तो सलाद जो है इट इज़ ऑल्सो हैव द लॉट ऑफ रफेज। तो ये हेल्प करता है फिल्टर आउट करने के लिए, वेस्टेड चीज़ें जो हैं हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं उसको निकालने के लिए। नाउ द थिंग्स इज कम विद द वाटर। वाटर अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आवर बॉडी वेट इज़ वाटर, सिंपली आवर बॉडी में जितने भी वेट है वो एक्स्ट्रा वाटर के कारण ही है। तो इट हेल्प्स टू बॉडी टू डिजॉल्व द डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब द फूड। ये किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, डिज़ोल्व करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए एंड अब्जॉर्व करने के लिए, किसको, जो फूड को, ठीक है। तो मैक्सिमम तो हो गया हमारा वेट। इट हेल्प टू रिमूविंग आवर बॉडी वेस्ट थ्रू द स्वेट एंड यूरिन। पसीने और यूरिन के थ्रू ये हमारे बॉडी का जो वेस्ट है उसको कहीं ना कहीं निकाल देता है। वी शुड ड्रिंक कितना, वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट कितना ग्लास ऑफ वाटर होना चाहिए,
Yes, you are right. We should drink about at least 8 to 10 glass of water every day. तो दिस इज़ द मेन थिंग कि पानी हमको ज़्यादा ही ज़्यादा लेना चाहिए, बिकॉज ये समहाउ हमारी बॉडी को हेल्प करता है. तो बैलेंस डाइट में हमारे पास क्या है? बैलेंस डाइट में है दैट इज़ कंटेन प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, दैट इज़ कॉल्ड द बैलेंस डाइट. प्रॉपर अमाउंट मतलब क्या क्या हो जाएगा? न्यूट्रिएंट्स हो गए, रफेज हो गए, वाटर रिक्वायर्ड फॉर द गुड हेल्थ हो गया. ये सारी के सारे कम्बिनेशन किस में आ जाएंगे? ये कम्बिनेशन आ जाएगा आपके बैलेंस डाइट में. तो दिस इज़ द फ्यू थिंग. और बैलेंस डाइट का जो डेफिनेशन है बिल्कुल आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो. A diet that contain proper amount of all the nutrients, roughage and water required for the good health called the balanced diet. तो ये बहुत ज़्यादा ही important part है. और ये अगर हम नीचे कुछ और portions में आ जाएंगे तो this is the extra things we have, but definitely we will going through in the next class जिसमें हमारा main portion हो जाएगा